مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں بین الاقوامی نسائی ادبی تنظیم بنات کے 8ویں یوم تاسیس کے موقع پر بنات اور شعبہ تعلیم نسواں مانو کے اشتراک سے 2 روزہ قومی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس میں اردو زبان و ادب اور نسائی ادب سے وابستہ سرکردہ شخصیات نے شرکت کی اور بدلتے سماجی و تہذیبی منظرنامے میں نسائی ادب میں وقوع پذیر تبدیلیوں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی۔ دیکھیے ہماری خاص رپورٹ۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں بین الاقوامی نسائی ادبی تنظیم بنات کے 8ویں یوم تاسیس کے موقع پر بنات اور شعبہ تعلیم نسواں مانو کے اشتراک سے 2 روزہ قومی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس میں اردو زبان و ادب اور نسائی ادب سے وابستہ سرکردہ شخصیات نے شرکت کی اور بدلتے سماجی و تہذیبی منظرنامے میں نسائی ادب میں وقوع پذیر تبدیلیوں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی۔ پروفیسر آمنہ تحسین صدر شعبہ تعلیم نسواں مانو نے کانفرنس کی مقصدیت اور افادیت پہ روشنی ڈالی۔ یہ جو 2 روزہ کانفرنس ہے یہ خاص طور پر اس لیے منعقد کی گئی ہے، اس کے پیچھے ایک خاص مقصد ہے کہ خواتین کی جو تحریریں ہیں، خواتین کا جو ادب ہے اس کو ایک طرح سے ویزیبلٹی ملے۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں ادب کی تاریخ، اردو ادب کی تاریخ دیکھیں تو وہاں ہمیں تاریخ میں خواتین کے نام کم ملتے ہیں، ان کے کام کی پذیرائی کم ملتی ہے۔ لہٰذا بین الاقوامی نسائی ادبی تنظیم نے یہ سوچا کہ اس طرح جو لکھنے والی خواتین ہیں انہیں ایک پلیٹ فارم پر جوڑا جائے اور ایک اس طرح کی تحریک چلائی جائے کہ خواتین کی تحریریں ہم آپس میں ملیں اور ایک دوسرے کو ڈسکس کریں کہ کس طرح کا ماحول ہے، کیا لکھا جا رہا ہے اور کیا لکھا جانا چاہیے۔ وہیں شعبہ تعلیمی نسواں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا جو مقصد ہے قیام کا وہ بھی یہی ہے کہ خواتین کو تحریر سے، قلم کی طاقت سے، تعلیم کی طاقت سے کس طرح سے امپاور کیا جائے۔ تو یہ 2 مقاصد بہت ایک دوسرے سے ربط رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ دونوں شعبوں کے اشتراک سے یہ 2 روزہ کانفرنس آج منعقد کی گئی۔ اس کانفرنس میں بہت بڑا ساتھ، بہت بڑا تعاون منصف ٹی وی کا بھی ہمارے ساتھ جڑا ہے، بہت رہا ہے۔ میں اس حوالے سے، اس پلیٹ فارم سے منصف ٹی وی کے تمام ارباب مجاز کو مبارکباد دیتی ہوں۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے شعبہ تعلیم نسواں اور بنات کے زیر اہتمام مولانا آزاد یونیورسٹی میں 2 روزہ اردو نسائی ادب سے متعلق کانفرنس کا انعقاد ہوا۔ اس کانفرنس کے انعقاد کا جو خاص مقصد ہے وہ ادب سے جڑی، خاص کر اردو ادب سے جڑی خواتین کو میدان میں لانا ہے اور ان کی جانب سے جو لکھی گئی تحریریں ہیں اسے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اور خاص کر میں منصف ٹی وی انتظامیہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے آج کے اس ماحول میں اردو ادب کو پروان چڑھانے کے لیے ہمارے ساتھ میڈیا پارٹنر بھی بنا ہے اور ہمارے تمام پروگراموں کو نشر کرنے کا بیڑا بھی انہوں نے اٹھایا ہے۔ میں تمام منتظمین اور منصف ٹی وی کے انتظامیہ کو ایک بار پھر دل کی عمیق گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ 21ویں صدی میں دنیا بھر میں سماجی اور تہذیبی منظرنامہ تیزی سے بدل رہا ہے، جس میں صنفی حساسیت، نسوانیت اور حقوق نسواں پر ایک نئے انداز میں غور کیا جا رہا ہے۔ اردو ادب بھی اس تبدیلی سے متاثر ہوا ہے، خصوصاً اردو کا نسائی ادب جس نے نئی جہتیں اپنائی ہے۔ اب یہ ادب صرف خواتین کے مسائل اور جدوجہد تک محدود نہیں رہا ہے، بلکہ اردو کے وجود، اس کی شناخت اور اس کے سماجی مقام پر بھی نئے زاویوں سے روشنی ڈالی جا رہی ہے۔ بنات کی نائب صدر عذرا نقوی نے اردو زبان کی بقا پر بات کرتے ہوئے نئی نسل کو اردو زبان سکھانے پر زور دیا۔ دیکھیے، جو ہماری کوششیں ہیں بنات کی کہ جو عورتیں لکھ رہی ہیں اس کو ہم یکجا کریں، ان کو مواقع دیں، ان کے ساتھ ڈسکشن کریں ادب کے بارے میں، تو ظاہر ہے کہ یہاں بھی کام ہو رہا ہے اور وہاں بھی ہم مختلف شہروں میں جا کے کرتے ہیں، تو اس سے ایک تبادلہ خیالات ہوتا ہے اور دل میں مطلب اور حوصلہ بڑھتا ہے۔ سب سے بات یہ کہ ہم دوسروں کی بات سنتے ہیں، ملتے ہیں، تو جو ہمارا مقصد ہے اس میں ہم بہت کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ساری خواتین مطلب ہندوستان کے مختلف دور دراز شہروں سے اپنے خرچے پہ آئی ہیں یہاں ساری کی ساری، اور ظاہر ہے یہاں کی مانو کی سپورٹ تھی جو ہم لوگ کو اتنا اچھا انتظام ہوا۔ تو اس طرح کی چیزیں تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں نا، جتنا بھی ہم کسی سے مکالمہ کریں گے تو وہ ہم اپنے مقصد کو پانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔
21वीं सदी के उर्दू निसाई अदब में औरत के वजूद और उसकी खुद मुख्तारी पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। इस सदी में खवातीन के अंदर अपनी शिनाख्त की तलाश और अपनी असल को समझने का रुझान बढ़ा है, जिसका अक्स निसाई अदब में भी दिखाई देता है। जदीद निसाई अदब में खवातीन के साथ होने वाले समाजी जुल्म और जबर को भी मौजू बनाया गया है, जैसे घरेलू तशद्दुद, जिनसी हरासानी और माशरती दबाव वगैरह। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मानू के वाइस चांसलर प्रोफेसर ऐनुल हसन ने भी उर्दू जबान की तारीफ और उसे फरोग देने पर जोर दिया। इन आवाज़ों का भी शुक्रिया, इनकी ज़रूरत है। यकीन जानिए, अगर ज़रूरत न होती तो इस यूनिवर्सिटी में हर बरस तकरीबन 200 बच्चियां ज़ायद आ रही हैं। वो तादाद जो 80-20 कहलाती थी इस यूनिवर्सिटी में, यानी 20% गर्ल्स 80% बॉयज़, आपकी मेहनतों की वजह से इस वक्त वो रेशियो 45-55 का है। और हमने भी ये ठान रखी है कि हम लड़कों को तो वो नहीं दे सकते, हॉस्टल की कमी है, मगर लड़कियों को हम ज़रूर अपने ही कैंपस में रखेंगे और उन्हें किसी न किसी सूरत से अकोमोडेशन देंगे। 21वीं सदी के आगाज से ही दुनिया में सिन्फी बराबरी और खवातीन के हुकूक के लिए आवाजें बुलंद होने लगी। माशरती रवैये तब्दील हुए और तालीम, मईशत और सियासत में औरत का किरदार मजीद मुस्तहकम होने लगा। आलमी सतह पर खवातीन को मसावी हुकूक देने के लिए कवानीन में भी तब्दीलियां आई और उनकी अहमियत को तस्लीम किया जाने लगा। ऐसे में खवातीन ने अदब को भी अपनी आवाज के इजहार का एक अहम जरिया बनाया और उर्दू अदब में भी खवातीन की तख्लीकात ज्यादा नुमायां होने लगी। बनात की सदर डॉक्टर निगार अजीम ने बैनुल-अक़वामी निसाई अदबी तंजीम बनात के मकासिद पर रोशनी डाली और तंजीम के कामकाज के बारे में तफसील से बताया। देखिए, बनात वक्त की ज़रूरत है। हमें ख़वातीन को कहीं अदबी प्लेटफॉर्म नहीं था कोई, सिवाय लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स को तो कहीं ना कहीं जगह मिल जाती है, लेकिन जो घरेलू ख़वातीन हैं और जो किसी बड़े इंस्टीट्यूट से जुड़ी हुई नहीं है, उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं था उनके लिए। तो हमारा मेन ख़ास मकसद जो है वो उन ख़वातीन को बनात से जोड़ना है जिनके लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। इसमें घरेलू ख़वातीन भी हैं, मुलाजमाएँ भी हैं जो किसी स्कूल में और किसी ऑफिस में या कहीं जॉब करती हैं, लेकिन वो बेसिकली राइटर हैं, लिखना चाहती हैं, लिख रही हैं, कोई तवज्जो नहीं है उनकी तरफ। तो बनात इस लिहाज से हमें महसूस हुआ कि कोई प्लेटफॉर्म ऐसा होना चाहिए जहां हम अपने अदबी काम की स्टडी कर सकें, हम पेश कर सकें, उस पर हम आपस में तनकीद करें, उसको बेहतर बनाने की कोशिश करें, नेज़ उसको मीडिया तक भेजें। सोशल मीडिया का वक्त है, ये मैगज़ीन में या दूसरी जगहों पर दूसरे ज़राए से उनकी तख्लीक़ात वाज़ेह हों, मंज़र पर आएँ। उर्दू निसाई अदब में मोहब्बत और ताल्लुकात को भी नए ज़ावियों से देखा जा रहा है, जिसमें ख़वातीन के जज्बात को समझने और उनके ताल्लुकात की पेचीदगियों पर गौर किया जाता है। 21वीं सदी के उर्दू निसाई अदब ने अदब में ख़वातीन की एक मजबूत आवाज़ पैदा की है। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कश्मीर की अदीबा व शायरा शबनम अशाई ने कहा कि इस तरह की कॉन्फ्रेंस से ख़वातीन कलमकारों को जोड़ने में मदद मिलेगी। जितनी भी ख़वातीन आज यहाँ जमात हुई है बनात की वसातत से इधर मानो यूनिवर्सिटी में, तो ये बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है ख़वातीन जो कलमकार हैं। देखिए, जो भी ख़वातीन के मसाइल हैं, बल्कि 21वीं सदी में किस तरीके से औरतें अदब अपना जो लिख रही है, क्या चेंजेस आ रही है अदब में, क्या चेंजेस आ रही है 21वीं सदी के, क्या असरात एक ख़ातून की ज़िंदगी पे पड़ रहे हैं, वो सब हमारे सामने आ रहा है। मुनसिफ टीवी की वसातत से हमें बहुत कुछ मिलता है, हैंड टू हैंड न्यूज़ तो मिल ही जाती है। बाकी अदबी फंक्शन हो तो इसका इश्तिहार सबसे पहले मुनसिफ पे ही आता है। 21वीं सदी के उर्दू निसाई अदब में नई सिन्फी शनाख्त और तजुर्बात को जगह दी जा रही है। यहाँ निसाई अदीबों ने
रिवायती मौज़ूआत को एक नई शक्ल में पेश किया है। अब ये अदब ख़वातीन के तजुर्बात, जज्बात और उनकी रूहानी और जिस्मानी शनाख्त के हवाले से लिखा जाने लगा है। फेमिनिज्म यानी निस्वाई हुकूक की तहरीक और जदीद मुआशरती मसाइल को भी निसाई अदब का हिस्सा बनाया गया है। निसाई अदब पे गुफ्तगू करते हुए प्रोफेसर सरवत खान ने कहा कि डिजिटल मीडिया उर्दू को आम लोगों तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा कर सकता है। आज का जो मौजू है इस कॉन्फ्रेंस का, उस मौजू से कई मौजूआत ऐसे निकलते हैं कि अभी जो 21वीं सदी के 25 साल हुए हैं, तकरीबन 24 साल, और अभी 75 बरस बाकी हैं। 75 बरसों में हमें आगे क्या करना है, वो मसाइल, वो चैलेंजेस हमारे सामने हैं। इस मौजू का यही मकसद है कि जो आगे वाला वक्त है, उस आने वाले वक्त में निसाई अदब को या हमारे उर्दू अदब को क्या सिमत और क्या रफ्तार जो है वो पकड़ना पड़ेगी, कौन कौन से चैलेंजेस हैं दुनिया में, कैसे मसाइल हैं। यानी इंसान के सामने अगर जो एक कलमकार है, उसके सामने वो तीन मोर्चों पे उसको जो है ज़िंदगी बसर करना पड़ती है और चैलेंज कबूल करना पड़ते हैं। पहला मोर्चा अपना घर, अपना समाज, दूसरा मोर्चा अपना मुल्क, उसका पूरा मंजरनामा, तीसरा मोर्चा बैनुल अक़वामी, पूरा उसका मंजरनामा। इन तमाम जो ये कहना चाहिए कि कुल कायनात वाला जो मामला है, इस कुल कायनात पे ऐसी नज़र रखना होगी जो अर्जुनी नज़र जिसे हम कहते हैं। अभी हमारा जो मौजू है आज का, तो हमने दरअसल 20वीं सदी से 21वीं सदी की तरफ सफ़र करते हुए जो ख़वातीन के ख़यालात हैं, जो अफ़कार हैं, जो मुख्तलिफ़ उनकी कहानियों में, अफ़सानों में या अशार में जो झलकते हैं, तो ये दरअसल उनका एक तरह से तज्ज़िया करना है कि उनके अफ़कार किस तरह से बदल रहे हैं या उनमें कुछ नई चीज़ें आ रही हैं, नहीं आ रही। क्योंकि काफ़ी तरफ से अभी देखिए तो टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा है, तो ये भी देखना है कि हम उस प्लेटफॉर्म तक पहुँचे हैं कि नहीं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल हमें उस तरह से आया है कि नहीं, तो हम कितने ज़्यादा अपने आप को उससे हम आहंग कर पाए हैं। निसाई अदब पे 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस में जहां निसाई अदब को दरपेश चैलेंजेस पे रोशनी डाली गई, वहीं उर्दू ज़बान व अदब के फरोग़ से मुतालिक भी गौर व खौस किया गया। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस कॉन्फ्रेंस से उर्दू के निसाई अदब को एक नई जहत मिलेगी। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के शोबा तालीम निस्वां और बनात नई दिल्ली के ज़ेर एहतमाम 21वीं सदी का समाजी, तहज़ीबी व सिनफ़ी तनाज़ुर और उर्दू का निसाई अदब के मौजू पर 2 रोज़ा कौमी सेमिनार मुनक़िद किया जा रहा है। आज इस कौमी सेमिनार की इफ्तिताही तकरीब यूनिवर्सिटी के DDE ऑडिटोरियम में मुनक़िद की गई, जिसमें यूनिवर्सिटी के शेखुल जामिया इज़्ज़तमाब प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन के अलावा मुल्क के तूल व अर्ज़ से ख़वातीन कलमकारों और अदीबों ने शिरकत की। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस कॉन्फ्रेंस से मुल्क के तूल व अर्ज़ से ख़वातीन कलमकार और अदीब एम्पावर होंगी और ये कोशिश रंग लाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ TV।